See, the trading plan for Nifty for this week is that starting on a good note, positive note, but time to time there will be falls that may come, jerks, which will suddenly, like in half an hour, it will bring it down. This will happen many times during the week. So you need to know when these jerks are coming. We have in our Premium Plus, we have already given them the timings when these jerks will come now. So they are aware. Every day I've given when the jerks are expected. We have done scientifically calculated and given it to them. भाई और बहनों, इस हफ्ते की जो विशेषता रहेगी कि शुरुआत तो मुझे पॉजिटिव दिख रही है सोमवार की, लेकिन टाइम टू टाइम एक झटके जर्क्स आने की संभावना बहुत है. लगभग हर दिन मुझे एक जर्क दिखता है. ठीक है, प्रीमियम प्लस पे तो ऑलरेडी पूरा हफ्ते का दे दिया मैंने. कब वो जर्क किस वक्त आएंगे, वैल्यू फॉर मनी है, ज्वाइन कर लें तो आपको अच्छी तरह से सब समझाते रहेंगे. पर वैसे भी यूट्यूब में भी मैं समझाते रहता हूँ. हर दिन में ये नहीं समझना कि अच्छा चल रहा है, एक जर्क नहीं आएगा. जर्क हर दिन आएगा, हर दिन, पूरा हफ्ता भर आएगा. सोमवार को भी दिखेगा. कुछ आफ्टरनून के समय आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो झटके आएंगे वो काफ़ी सेंटिमेंट को बहुत हर्ट करने वाले हैं. इसके लिए समझ के ट्रेड करना है, इंक्लूडिंग ऑप्शंस एक्सपिरेशन डे. उस दिन भी एक झटका बहुत अच्छा, बहुत तीव्र आने वाला है, वो जोर से एक. ठीक है भाइयों बहनों, जो हकीकत है मैं वही बताता हूँ. मैंने तो कहा पॉजिटिव स्टार्ट लग रहा है, वो भी कहता हूँ कि झटका भी आएगा, दोनों बता रहा हूँ मैं. ये नहीं, एक साइड नहीं जाता कभी, और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए या नीचे. मैं सिर्फ आपको जो सिचुएशन है बस वही समझाऊंगा. आई विल ओनली टेल यू what I expect in the market. One piece of advice: if you want to do well in your investing, be a good human being. I'm telling you one thing. If there are two types of things, I may request all of you with folded hands. If there is a death in anybody's family, please don't take advantage. Try to cooperate and be helpful to that person. ठीक है, कई लोग किसकी वीकनेस का और मजबूरी का फ़ायदा उठा देते हैं. किसी के भी घर में अगर कोई देहांत हो जाता है, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करूं, उनको आप हेल्प करिए. हाँ, अच्छे ह्यूमन बीइंग बढ़िए. मेरे से प्रेडिक्शंस ले लीजिए, लेकिन मैं पैसे बनाना एक बात होती है, लेकिन अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं रहे, उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं करिए. थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके उनको हेल्प करिए. दूसरा, और ये मैं आपको दिल से एक बोल रहा हूँ, हाँ, ये हफ्ता शुरू हो रहा है. अगर आपको पता है कि किसी के घर में बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज आर देयर इन इंडिया, इवन ओवरसीज, they have husband, wife, some children, two children, maybe one child, and they have old parents, or one parent has passed away, so only one is remaining. Middle class families have some expenses, elders to take care of them. They got eyesight problem, hearing issues, some blood pressure, knee joints pain. Please be sympathetic to that person who is handling a family where there are some elderly, especially if you know that the person is not well to do or not so well to do person. If you are having some business dealing, please don't, with such a person, don't bargain unnecessarily. He will earn less, he will have less money to spend on the elderly person. Don't do that. If you have got some other way you can, in fact, to this person you give him 5% more. He should have enough money to take care of his elder parent. This is my very humble request with folded hands. Please, if there is some family you know where you are having some dealing, business, otherwise, if you can, elderly person is there, a middle class family not having much money, please try some way to help that person directly or indirectly. This is Sunil Keval Ramani requesting you with folded hands. भाई और बहनों, कोई वृद्ध है अगर किसी के फैमिली में, आप मदद करिए उसको. अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उससे पैसे बार्गेन नहीं करिए. उसको कुछ किसी वे में उसके पास कुछ पैसे रहें तो वो वृद्ध इंसान के ऊपर काफ़ी खर्चे रहते हैं. आंखें नहीं चलती बरोबर, हियरिंग का इशू है, घुटने नहीं चलते, उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं. और ख़ास करके हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं और वृद्ध माता पिता, या फिर एक गुजर जाता है एक रह जाता है, उनको अपना ही डिप्रेशन बहुत रहता है.
ऊपर से मेडिकल इश्यूज़। आप इन लोगों के साथ सहानुभूति करिए जिनके घर में वृद्ध इंसान है, और जो लोग जहाँ देहांत हो गया है प्लीज़, और जहाँ दोनों है, वृद्ध है और एक देहांत हो गया है, आप बहुत ज़्यादा करिए। देखिए आपकी इन्वेस्टिंग कैसे आपकी अच्छी हो जाती है, पैसे कैसे बनाते हो। ये अच्छे ह्यूमन वैल्यूज़ और ह्यूमन जो बर्थ है हमारा, हाँ मैं भी कितना टाइम हूँ, हाँ आप भी कितना टाइम है, आपको भी पता है सबका लिमिटेशन है। कुछ अच्छा करिए। हाँ, वृद्ध इंसान और कहाँ देहांत हो गया हो फैमिली, उनके साथ सहानुभूति करिए। खास करके जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके आप हेल्प करिए उनको। हाँ, फ़ायदा नहीं उठाइए, फ़ायदा नहीं उठाइए किसकी अगर देहांत है, कोई बूढ़े लोग हैं किसकी फैमिली, आप आउट ऑफ द वे लोग जाते नहीं, मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ खा पी के उसके घर से आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आप कुछ मदद करिए उनके लिए, कुछ बनाइए, उस आदमी को ऐसे कुछ कुछ पैसे रहे कि वो वृद्ध इंसान के ऊपर खर्च कर सके। मेरी बात मानिए प्लीज़। ठीक है, आप लोगों के लिए हफ्ता शुभदायी रहे, ईश्वर से प्रार्थना मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।